Hi everyone, welcoming all of you to my classes. I am your Akhil sir. Today I am going to discuss you the remaining portion of depreciation chapter, which is our written down value method, or it is known as reducing balance method or diminishing balance method. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा मेथड डेप्रिसिएशन का. इसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इस मेथड में डेब्ट जो चार्ज होता है एवरी ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ द एसेट्स. स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एवरी ईयर. Like we had already discussed in our previous session, that if the machine cost is 1 lakh, so it will be charged under straight line method on 1 lakh every year. Suppose 10% rate is there, so 1 lakh 10% will be 10,000. So after first year the balance of the assets will be 90,000. So again we have to charge depreciation under straight line method on 1 lakh. So under straight line method, depreciation is charged on the original value of the assets. Value of the asset is reducing, but the amount of depreciation is same in every year, as I already discussed in our previous session and also shown to you by preparing a working note and giving an example to you. Now we are going to discuss our second method, which is our written down value method. Written down value method, or it is also known as reducing balance method. Reducing balance method, or it is also known, another name is diminishing balance method. Diminishing balance method. Okay. In examination purpose, it is frequently asked in examination for HS, higher secondary level, class 11 exam, and also in BCom first semester, that is, state the difference between straight line method and written down value method. It is frequently asked in exam. It's most important question for exam purpose. So, under written down value method, under this method, depreciation is charged on the balance of the assets every year. Suppose if 1 lakh is the cost of the asset, if 10% dep is charged, so after 1 year value of the asset would be 90,000. Under straight line again we have to charge on 1 lakh, but under diminishing, dep will be calculated on the balance of the asset, which is 90,000. It will be 9,000. So under straight line method, in both the years dep is 10,000, but under diminishing balance method it is 10,000 in the first year, 9,000 in the second year, and after second year 90,000 minus 9, that is 81,000. On third year it is charged on 81,000, which is 8,100. So under diminishing balance method, dep is charged on the balance of the assets every year. Value of the asset is reducing like straight line method, but the only difference is that dep is different in every year. Okay, it is not the same like straight line method. Under straight line, dep is same as it is charged on the original value of the asset, but under diminishing balance method it is different as it is calculated on the balance of the asset is every year. Another difference between straight line and diminishing balance is that under straight line, value of the asset would be 0 after a certain number of years. Suppose it is 10,000. If it is charged for 10 years, value would be nil. 1 lakh minus 1 lakh will be nil. But under diminishing balance method, value of the asset would not be 0, as the amount of dep is different in every year. Okay. So, under this method, which is our written down value method, depreciation is charged on the balance of the assets every year.
value of the asset is reducing, like straight line method, by charging depreciation, value of the fixed asset will be reducing under both this method. Dep means we are charging depreciation by deducting the debt from the value of the asset. So it is reducing under both this method. Value of the asset is reducing, but the amount of depreciation would be different in every year. Got my point? His most important point is that depreciation amount is different under written down value method or reducing balance method or diminishing balance method. But under straight line, depreciation amount is same in every year. Okay? Would be different in every year. Okay? So, like straight line method, working will be same for doing depreciation sums. First, we have to prepare a statement of depreciation by showing M1, M2, M3, first year, first machine, second year, second machine, third year, third machine. Like straight line method, if we are going to sold the first machine in the third year, you have to sold the first machine. By selling the first machine, we have to pass 3 entries. First is depreciation on the machine sold till the date of sale. Secondly, sale of the machine, and thirdly, profit or loss on sale of machine. After selling the first machine, we have to purchase the third machine if it is given, that on the same date, that is on the date of sale. If machine 3 is purchased, first we have to purchase the third machine under statement of depreciation. Then we have to charge depreciation till the accounting year ends. So when the machine is sold, we have to charge depreciation twice. First on the date of sale, and secondly the balance machinery depreciation till the accounting year ends. हम लोग को जब मशीन सेल करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जिस साल मशीन को सेल करेंगे उस साल हम लोग को 3 एंट्री पास करना पड़ेगा. फर्स्टली जिस दिन मशीन को सेल कर रहे हैं उस दिन तक का उसका डेप्रिसिएशन, सेकेंडली सेल वैल्यू ऑफ द मशीनरी, एंड थर्डली प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, जिस दिन मशीन को सेल कर रहे हैं उस दिन का वैल्यू से माइनस करना होगा सेल वैल्यू को. अगर देखना पड़ेगा कि सेल वैल्यू अगर मेरा कम है और मशीन का वैल्यू जिस दिन बेच रहे उस दिन ज़्यादा है, मतलब मेरा क्या रहा, लॉस हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है. और अगर सेल वैल्यू अगर ज़्यादा है मशीन के वैल्यू से, देन क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा. अगर प्रॉफिट निकलेगा तो एंट्री क्या होगा, 2PL. लॉस निकलेगा तो बाई PL. सेल ऑफ मशीनरी की एंट्री क्या होगा, बाई बैंक. परचेज में क्या होता है, 2 बैंक. सेल में होगा बाई बैंक. और डेप का एंट्री क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ सेल बाय डेप्रिसिएशन. ये एंट्री करना है जब मशीन को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, जो हम लोग प्रीवियस सेशन में दिखाया है स्ट्रेट लाइन में. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करना होगा. फ़र्क क्या होगा, अंडर दिस मेथड depreciation is charged on the balance of the assets every year. Value of the asset is reducing, but the amount of debt would be different in every year. This is the concept. अब हम लोग आते हैं कैसे हम लोग स्टेटमेंट करेंगे और कैसे हम लोग उस वर्किंग को अकाउंट में शो करेंगे. जो मैंने स्टेट लाइन में दिखाया था उसी को अब हम लोग दिखाएंगे किसमें, डिमिनिशिंग बैलेंस में. Okay. So take an example of me like the previous one. Example there हम लोग statement of depreciation. Suppose M1 is our first machine which is purchased on 1/4/19. 2019 में फर्स्ट परचेज किया है, सपोज इट इज 2 लाख. दिस इज द परचेज वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मशीन. अब हम लोग क्या करेंगे, डेट चार्ज करेंगे.
सम में बोला है 10% डेट विल बी ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो पहला साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, नेक्स्ट ईयर बैलेंस पे होगा। फर्स्ट ईयर ऑन द परचेज वैल्यू ऑफ द एसेट, सेकेंड ईयर से क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस होगा, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग में। सेकेंड ईयर में क्या होगा, हम लोग किस पे चार्ज करेंगे, बैलेंस ऑफ द एसेट। सपोज अगर अकाउंटिंग है मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो अप्रैल से लेकर मार्च कितना महीना हो रहा है मेरा, 1 साल। अभी क्या हो गया, 1 April 20 हो गया, मार्च में एंड हो रहा है, बीडी कब होगा, 1 April 20। अब मान लो M2 हम परचेस कर रहे हैं, पहले परचेस कर लेंगे कॉस्ट एज ऑन 1 September 20 को। सेकेंड मशीन खरीद रहे हैं, मान लो हम खरीदा है इसको 1 लाख पे। अब मेरे पास 2 मशीन है, M1 है और M2 है। अगर स्ट्रेट लाइन होता अगेन 2 लाख पे चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो इसमें 1,80,000 पे चार्ज करेंगे। तो पहला मशीन पे कितना डेप होगा, फॉर 1 ईयर इट इज़ आवर 10% विच इज़ 18,000। और सेकेंड मशीन में कितना होगा, 1 लाख का 10% कितना, 10,000 फॉर 6 मंथ, बिकॉज अप्रैल टू मार्च 6 मंथ डेप कितना होगा मेरा, 5,000। सो टोटल डेप कितना आएगा मेरा, दोनों को मिलाकर M1 M2 मिलाकर कितना आ रहा है मेरा, 18 + 5 23। ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे पास जितना मशीन हो, M1 M2 M3 M4, 4 मशीन अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं 4 साल में, तो हम लोग को 4 मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और चारों का इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, इसी तरीके से हम लोग के पास 2 मशीन है, तो 2 मशीनरी अकाउंट नहीं बनाएंगे, एक ही मशीनरी अकाउंट में परचेज भी दिखाएंगे और उसका टोटल डेप को भी दिखाएंगे। ओके, नाउ पहला मशीन वैल्यू कितना हो गया, 1,62,000, दूसरा मशीन वैल्यू हो गया 95। ओके, गॉट माई पॉइंट। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में क्या लिखते हैं हम लोग, डेप चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बीडी होता है क्या लिखते हैं यहाँ पे, बुक वैल्यू। डिमिनिशिंग में क्या लिखते हैं हम लोग, WDV, विच इज फुल फॉर्म इट इज रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, 1 April 20 से लेकर डेप कब तक चार्ज किया हम लोग, मार्च 21 तक, तो बीडी कब होगा, 1 April 22। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट मशीन को हम लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं। कब सोल्ड आउट कर रहे हैं, सपोज इट इज सोल्ड ऑन 1 July, depreciation at 10%, अप्रैल मई जून, इट इज सोल्ड ऑन जुलाई, तो कितना महीना का डेप होगा, 3 मंथ। कैसे निकालेंगे, 1,62,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। व्हाट माई पॉइंट, अगर वैल्यू ऑफ द मशीन को जितना वैल्यू आया है उसको अगर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का निकलेगा, और अगर जितना महीना हम लोग को चाहिए, अगर 3 मंथ चाहिए, तो रेट के साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मंथ डिवाइडेड बाय 12। ओके, गॉट माई पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 महीना का डेप चार्ज कर दिया, तो हम लोग सेलिंग नीड तक पहुंच गए। रिटर्न वैल्यू आएगा ऑन 1 July 22। अब जितना वैल्यू आएगा उससे क्या करेंगे हम लोग, सेल को माइनस करेंगे, तो क्या निकल जाएगा मेरा, प्रॉफिट या लॉस। ओके, फर्स्ट मशीन को सोल्ड आउट कर देंगे, करने के बाद हम लोग कोई नया मशीन अगर परचेस कर रहे हैं, पहले परचेस करेंगे, देन वी हैव 2 मशीन M2 और M3, उसको चार्ज करेंगे टिल द अकाउंटिंग ईयर एंड्स। ओके, गॉट माई पॉइंट। सो वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन व्हेन द मशीन इज सोल्ड फॉर 2 times, firstly on the date of sale, when the machine is sold, on the machine sold we have to charge debt from the beginning of the accounting year till the date of sale. Thereafter, when the machine is sold out, then we have to pass entries for the machine purchased, additional machinery, then we are charging depreciation on the balance of the machinery for till the accounting year ends. Okay, now 1,62,000 का 10% होता है 16,200, 1/4 निकलता है कितना मेरा, 4050. Okay, so it is written as 4050. We have to pass entries on 1 July. 3 entry will be passed, 3 entry पास करना होगा। एक एंट्री को बाय डेट
एक एंट्री होगा बाय बैंक और एक एंट्री होगा बाय पीएल या फिर 2 PL। ओके, वैल्यू ऑफ द मशीनरी कम्स कितना आ रहा है मेरा, देखो यहाँ पे 1,57,950। जिस दिन मशीन को सोल्ड आउट कर रहे हैं, 2 लाख का मशीन को खरीदा था 19 में, हम लोग सोल्ड आउट कब कर रहे हैं, 1 जुलाई 22 में। वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 1,57,950। अब देखना है कि इस वैल्यू से अगर कम में सोल्ड आउट करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा, और इससे अगर ज़्यादा में सेल करें तो क्या निकलेगा, मेरा प्रॉफिट निकलेगा। सपोज द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000, मेरा वैल्यू कितना रहा, 1,57,000, बट द मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000, सो वी आर इनकरिंग लॉस ऑफ हाउ मच, वी आर इनकरिंग लॉस ऑन सेल विच इज 7,950। ओके, गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। ये मशीन को हम लोग सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, M2 है मेरे पास। अब मशीन को बेचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड मशीन खरीदा है। ओके, इसको हम रब मिटा दें, रबिंग करें, रब कर दें इसको, ठीक है। रिमेंबर, जो वर्किंग किया है फिर मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे। रिमेंबर माई पॉइंट। फर्स्ट देन आफ्टर मशीन जब सोल्ड कर देंगे, हम इस पर डेप चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कोई एडिशनल मशीनरी परचेस कर रहे हैं कि नहीं। जिस साल मशीन को सोल्ड आउट करेंगे, पहले मशीन को सोल्ड आउट कर देंगे, उसका सेलिंग रेट तक डेप निकालेंगे, उससे सेल वैल्यू माइनस करेंगे, निकालने के बाद लॉस से प्रॉफिट जो निकलेगा उसको एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू पास एंट्रीज फॉर द मशीन परचेज। सपोज वी हैव परचेज मशीनरी ऑन द डेट ऑफ सेल विच इज 1 जुलाई 22। एंट्री खरीदा है हमें मान लो 1,50,000 में, थर्ड मशीन खरीदा हम लोग 1,50,000 में। तो हम लोग के पास 2 मशीन है, एक है 1 लाख का मशीन जो खरीदा हम लोग 1 सितंबर 20 में, और एक मशीन खरीदा हम लोग 1 जुलाई 22 में। तो इस मशीन को हम लोग कब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, डेप इज चार्ज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द अकाउंटिंग ईयर एंड्स। तो ये मशीन को हम लोग अप्रैल 22 से इस्तेमाल कर रहे हैं, कब तक, मार्च 23 तक। 1 साल का डेप इस पर चार्ज होगा, और इस पर कितना महीना इस्तेमाल करेंगे, जुलाई 22 से मार्च 23 तक। ओके, लेस डेप इस पे चार्ज होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो बैलेंस पे चार्ज होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं हम लोग, अगेन 1 लाख पे चार्ज करते हैं। ओके, सो इट विल बी 9,500 फॉर 1 ईयर। इस पे कितना होगा मेरा, 1,50,000, 10% कितना होता है, 15,000। जुलाई टू मार्च कितना महीना, 9 मंथ हो रहा है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप, 1,50,000 into 10/100 for 1 year. Required number of months is 9 divided by 12. So what is the amount of debt in this situation? How much is the amount? 3,750 into 3, 1,250. It comes 11,250. So on second machine मेरा कितना डेप आया, 9,500. On third machine our depreciation comes 11,250. These two are added. These two figures are added to get the total amount of debt till the accounting year ends. So it will be 20,750. ये चार्ज कब होगा मेरा, 31 मार्च 23 में, ऑन द बैलेंस ऑफ द मशीनरी। फर्स्ट मशीन को सोल्ड आउट कर दिया था, सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन का डेप कितना आ रहा है मेरा, मार्च 23 तक कितना आ रहा है, दिस टू आर एडेड, सो वी विल गेट द फिगर ऑफ 20,750. नाउ द बैलेंस मशीनरी कम्स रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1st 23. सेकेंड मशीन वाले कितना आ रहा है हमारा 85,500, और थर्ड मशीन में कितना आ रहा है 1,38,750. ओके, सी है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बाय यूजिंग दिस वर्किंग। इस वर्किंग को यूज करके हम लोग दिखाएंगे हाउ इट इज टू बी शोन अंडर मशीनरी अकाउंट. ओके, प्रीवियसली I have discussed with you regarding straight line method by giving you an example in this way. Like the same way we have prepared machinery account
on, and like the same way I am going to prepare machinery account by using these workings. Okay. Now, date particulars, JF amount, date particulars, JF amount. Okay. So using these workings, our date of purchase of the first machine is April 19. How much is the amount? Amount is 2 bank 2 lakh. Now, next entry will be 31st March 20 by depreciation 20,000 for 1 year. 2 lakh into 10 by 100. Okay. Now balance CD 2 lakh written on the both sides. Like when we are balancing in ledger account, same concept is to be followed. It's also a ledger account. So जैसे लेजर का बैलेंस करते हैं हम लोग यहाँ पर भी सेम बैलेंसिंग करेंगे. 2 लाख ऑन द डेबिट साइड विच इज़ बिगर देन द क्रेडिट साइड. तो बैलेंसिंग कैसे होता है? जिस तरह टोटल ज़्यादा होता है उसका अपोजिट में निकलता है बाय बैलेंस सी बी ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. और बी डी कब होता है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. Okay. Now, on second year, we have purchased the second machine on 1st September 20. For how much? It is 1 lakh. 1 lakh. One lakh. So total depreciation will be by depreciation, which is I have shown in the workings, 18,000 on the first machine and 5,000 on the second machine. Total debt is 23. 18,000 for the first machine, 5 for the second machine. For how many months? September to March. It is for 6 months. Okay. By balance CD. Two lakh 80 minus 23, which comes 2 lakh 57. अब यहाँ पर आगे क्या किया हम लोग? 2 लाख का मशीन को सोल्ड आउट किया था ऑन 1 जुलाई 21. क्या कहता है? बाय डेट 3 महीना कितना निकलता मेरा? 1,62,000 का 4050. Then same date buy bank sell. It was sold for 1,50,000 and we are incurring loss of how much? अगर प्रॉफिट होने से क्या लिखते हैं हम लोग? 2PL. लॉस होते क्या लिखेंगे? बाय PL. लॉस 7950. ये हो गया मशीन सोल्ड आउट का वैल्यू. ठीक है. जिस साल मशीन को बेचेंगे वो 3 एंट्री पास करेंगे. सेलिंग डेट तक उसका डेप्रिसिएशन, उसका सेल परचेज में होता है 2 बैंक, सेल में होगा बाय बैंक, लॉस में क्या लिखेंगे? बाय PL. अगर मान लो प्रॉफिट होता है क्या लिखते हैं हम लोग? 2PL. अब क्या किया हम लोग? ऑन द सेम डेट ऑन 1 जुलाई क्या किया हम लोग? थर्ड मशीन खरीदा है और हाउ मच? 1,50,000. अब मेरे पास 2 मशीन है, M2 एंड M3. दिस इज आवर M2, दिस इज आवर M1 एंड दिस इज आवर M3. देखो यहाँ पे 3 मशीन है
लेकिन 3 मशीनरी अकाउंट नहीं बन रहा है, एक ही मशीनरी अकाउंट में तीनों का इफेक्ट दिखा रहे हैं, M1, M2 and M3. 3 machines are accumulated together, combined together to give a merged balance of the machinery. Total machinery balance includes these 3 machinery together. Okay. Now हम लोग क्या करेंगे, मार्च तक का डेट चार्ज करेंगे ऑन सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड का वैल्यू कितना हो गया 95,000 पे डेप कितना होगा 9500, और इस पर कितना होगा मेरा 1,50,000 का 10% 15,000 फॉर 9 मंथ इट कम्स 11,250 जो वर्किंग में दिखाया था. टोटल कितना है मेरा 20,750 जो वर्किंग में दिखाया था, उसी को हम दोबारा दिखा दे रहे हैं. नाउ डू द बैलेंसिंग लाइक द प्रीवियस वन. डेबिट साइड टोटल इज बिगर देन द क्रेडिट साइड. पुट द टोटल ऑन बोथ साइड्स एंड डिडक्ट the lesser side from the bigger side to get the balance at the end of the accounting year. Okay. Y balance. See, how much is the balance? 1,07,000 minus total figure comes 224,250. This is what? This 2,24,250 includes the value of the machinery of M2 and M3 together. ये 2,24,000 में क्या आ रहा है मेरा M2 और M2 का बैलेंस है आफ्टर डिडक्टिंग डेप. डेप लेस करने के बाद जो बैलेंस है M2 और M3 का वो इसमें इंक्लूड है. आई गॉट माई पॉइंट. सो अगर मशीनरी हम लोग ज़्यादा परचेस करते हैं तो जितना मशीनरी खरीदेंगे उतना अकाउंट नहीं बनेगा, बट वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन फिक्स्ड एसेट अकाउंट लाइक मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट. अगर मान लो फर्नीचर भी रहता, पहला साल में एक फर्नीचर, दूसरा में सेकंड ईयर सेकंड फर्नीचर, थर्ड ईयर में थर्ड फर्नीचर, देन आफ्टर ऑन द थर्ड ईयर पहला फर्नीचर को बेच दे रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी फॉलोड लाइक मशीनरी अकाउंट. तो फर्नीचर में अगर मान लो 2 या 3 खरीदते हैं तो फर्नीचर का अकाउंट भी 2-3 नहीं बनेगा, एक ही फर्नीचर अकाउंट में तीनों का इफेक्ट दिखाया जाएगा. लाइक वी हैव परचेज कंप्यूटर, सेम वे वी हैव टू फॉलोड. सो मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर परचेज करते हैं, जितना हम लोग परचेज करेंगे उतना हम लोग को अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ेगा, बट जब परचेज करेंगे टू बैंक और उसका टोटल जब करेंगे क्रेडिट साइड में, डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा दैट इंक्लूड्स द टोटल नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेज्ड during the year after deducting depreciation. Got my point? So this is our concept regarding depreciation. Another concept of debt is provision for debt. When provision for debt is maintained, I am giving you a short concept of that. It's the most important concept for BCom student, those who are giving BCom exam and also for ISC exam, CBSE board, ISC 11 and CBSE 11. They have their chapters. Depreciation includes provision for debt method also. So under provision for debt concept is that provision for debt किस लिए मेंटेन होता है कि हम लोग को फिक्स्ड एसेट को दिखाना है कॉस्ट प्राइस में, जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. डेट लेस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है दैट इज आवर रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेट. ये मेरा ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है. अंडर स्टेट लाइन मेथड में अगर डेट लेस करते हैं तो क्या लिखते हैं, वो बुक वैल्यू लिखते हैं, मतलब उसमें डेप लेस किया हुआ है. दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट. बट जहाँ प्रोविजन फॉर डेप मेंटेन होता है वहाँ पे हम लोग डेप कहाँ चार्ज करेंगे, अंडर अ सेपरेट अकाउंट. डेप विल बी चार्ज अंडर अ सेपरेट अकाउंट नोन एज प्रोविजन फॉर डेप. तो डेप यहाँ क्रेडिट नहीं होगा, वो कहाँ क्रेडिट होगा, प्रोविजन फॉर डेप में. और एसेट को किस में दिखाएंगे हम लोग, एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट प्राइस. ओके. तो जिस साल हम मशीन को सेल करेंगे उस साल क्या करेंगे, एवरी ईयर डेप कहाँ क्रेडिट होगा, प्रोविजन में एक्यूमुलेट होगा बाय डेप
टू बैलेंस सीरीज देन बाय बैलेंस बीडी। अब जिस साल मशीन को सोल्ड आउट करेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग, डिस्पोजल अकाउंट ओपन करना होगा। मान लो अगर 5 लाख का मशीन का वैल्यू है जिसमें से 1 लाख का मशीन को कॉस्ट प्राइस बेच रहे हैं, एंड बाय मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्थ, सो जिस साल मशीन को सोल्ड आउट करेंगे 5 लाख अब तक हम लोग दिखा रहे थे ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्योंकि डेप्थ हम लोग सेपरेट अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं। तो जिस साल मशीन को सोल्ड आउट करेंगे 5 लाख से 1 लाख का मशीन को ओरिजिनल वैल्यू को सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो 1 लाख का मशीन क्या करेंगे 5 लाख से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाय एसेट डिस्पोजल। अगर मशीनरी बेच रहे बाय मशीनरी डिस्पोजल, फर्नीचर बेच रहे बाय फर्नीचर डिस्पोजल, कार बेच रहे बाय कार डिस्पोजल। तो यहाँ पे क्या करें, डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और क्या करेंगे डिस्पोजल में, क्या करेंगे जितना अब तक का डेट, जैसा नॉर्मली जो बनाते हैं हम लोग परचेजिंग डेट से हम लोग को सेलिंग डेट तक आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में क्या करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेट, और प्रोविजन फॉर डेट में क्या करेंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल। मतलब जितना डेप मेरा क्रेडिट हुआ था जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप क्या करेंगे, प्रोविजन में डेबिट और डिस्पोजल में क्रेडिट। तो 1 लाख का मशीन का मान लो अब तक का डेप अगर मान लो 56,000 है, तो 1 लाख से माइनस क्या 56, कितना वैल्यू आया 44 का मशीन को मान लो हम बेच रहे हैं 30,000 में, तो बाय बैंक जैसा नॉर्मली करते हैं सेल की एंट्री करेंगे और बाय पीएल करेंगे लॉस ऑन सेल। तो नॉर्मली जो हम मशीनरी अकाउंट में शो करते हैं लॉस डेप और सेल का एंट्री, वो एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि हम लोग मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ से अब तक का डेप को रिटर्न बैक करेंगे और वहाँ से सेल वैल्यू को माइनस करने के बाद लॉस या प्रॉफिट निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देने देखो, एक न्यूमेरिकल रफली ले रहे हैं यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट मान लो यहाँ पे दे रहा है, बैलेंस बता रहा है मशीनरी का बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 21, बैलेंस बीडी 5 लाख। अब इसमें समय बता रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस बता रहा है उसमें 2 लाख, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस बता रहा है 2 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ऑन 21 बैलेंस जो बता रहा है इसी साल में क्या कर रहे हैं हम लोग कि 1 सितंबर में वो 1 लाख का मशीन को बेच रहा है, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है बैलेंस बीडी। अब इसमें ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग, बाय मशीनरी डिस्पोजल, बाय मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप। तो एसेट में डेप चार्ज नहीं करेंगे, इमीडिएट डेप कहाँ चार्ज किया हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप, उसका बैलेंस बता दिया है। उसका बैलेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरी डेप एक्यूमुलेट हुआ था बाय डेप टू बैलेंस सीरीज है, बाय बैलेंस बीडी करते करते बैलेंस कितना आया है, मान लो बाय बैलेंस बीडी बता रहा है प्रोविजन का बैलेंस 2 लाख। ओके, अब क्या करेंगे, डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया 1 लाख। अब 5 लाख मेरा ओरिजिनल कॉस्ट था, उससे 1 लाख चले गया मेरा ओरिजिनल कॉस्ट डिस्पोजल में। अब ये कितना कॉस्ट रह गया मेरा 31 मार्च 22 बाय बैलेंस सीडी, कितना रह गया 5 लाख से 1 लाख निकल गया, बचा कितना मेरा 4 लाख मेरा ओरिजिनल कॉस्ट रह गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी प्रोविजन फॉर डेप मेंटेन करेंगे एसेट शुड बी शोन एट कॉस्ट प्राइस, इसलिए हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप। एसेट में डेप चार्ज नहीं करते हैं, ऑल डेप विल बी चार्ज इन प्रोविजन फॉर डेप एंड दिस डेप विल बी एक्यूमुलेटेड, क्रेडिट बैलेंस होता रहेगा बाय डेप टू बैलेंस सीडी, देन अगेन बाय बैलेंस बीडी, अगेन बाय डेप ऐड करके टू बैलेंस सीडी, देन अगेन बाय बैलेंस बीडी। इस तरीके से करते करते मेरा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस 2 लाख दिखा रहा है। अब 5 लाख से 1 लाख का मशीन को बेच दिया, बैलेंस रह गया 4 लाख। ओके, अब मान लो 1 लाख का मशीन का अब तक का टोटल डेप है, 1 लाख का मशीन तो बेच दे रहे हैं, 2 लाख में 1 लाख इंक्लूड है। अब ये 1 लाख का मशीन को जो बेच रहे हैं ऑन 1 सितंबर रफली से फॉर एग्जांपल द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोग, मान लो वो डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे,
टू मशीनरी डिस्पोजल. ओके, टू मशीनरी डिस्पोजल में कितना होगा मेरा? सपोज 1 लाख का मशीन का अब तक का डेप है मेरा, मान लो 78,500. 57,000 अब तक रफली हम दिखा रहे थे. 1 लाख का मशीन का अब तक का डेप मान लो सपोज से फॉर एग्जाम्पल 57,000. तो 1 लाख का मशीन से 57 को माइनस कितना आ रहा है? 43 आ रहा है. 1 लाख का मशीन का वैल्यू से अगर हम डेप को लेस करें, कितना वैल्यू आ रहा है मशीन का वैल्यू सेलिंग डेट में? 43. मान लो मशीन को हम बेच रहे हैं 35 में. ओके, तो लॉस कितना निकलेगा मेरा? 43 माइनस 35, लॉस विल बी 8,000. वो लॉस और सेल का एंट्री कहाँ आएगा? डिस्पोजल अकाउंट में आएगा. यहाँ पे क्या करना है? जिस मशीन को बेच रहे हैं अब तक का डेप वो यहाँ पे क्रेडिट था, अब क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे. अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ बैलेंस मशीनरी पे डेप अगेन एक्यूमुलेट होगा. बाय डेप ऑन द बैलेंस मशीनरी 4 लाख पे. 5 लाख से 1 लाख निकल गया. 4 लाख पे डेप मान लो यहाँ पे हो रहा है 10% हो रहा है तुम्हारा, मान लो 40,000 और इसका डेप उसमें इंक्लूड है. सपोज मेरा आ रहा है 45,000 से फॉर रफली एग्जाम्पल. डेप क्रेडिट हुआ ना. इसी तरीके से एवरी ईयर डेप एक्यूमुलेट होता है प्रोविजन फॉर डेप में. बाय डेप देन टू बैलेंस सीडी. अब डिस्पोजल में किस लिए ट्रांसफर किया? क्योंकि इस मशीन को हम बेच दे रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं. अब तक मेरा क्रेडिट था, जब मशीन को सोल्ड आउट करे उसका क्या करना? डेप को क्या करना होगा? रिटर्न बैक करना होगा. क्रेडिट से क्या करना होगा? डेबिट, बिकॉज दैट मशीन वॉज सोल्ड ऑन 1st September. So that depreciation which is accumulated till the date of sale will be returned back. Okay, got my point? 2,45,000. अब देखो यहाँ पे फिर क्या निकलेगा? बाय टू बैलेंस शीट निकलेगा. इसीलिए क्या होता है? प्रोविजन पर डेप क्या होता है? लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है. इसीलिए इसका बैलेंस क्या निकलता है? टू बैलेंस सीडी, देन होता है बाय बैलेंस बीडी. हो गया? कितना का बैलेंस? 0,0,188. इसको बीडी करेंगे. बाय बैलेंस बीडी. प्रोविजन इज ऑफ करंट लायबिलिटी. ऑल प्रोविजन और करंट लायबिलिटी. देखो बाय बैलेंस बीडी आएंगे. अब हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. मशीनरी में क्या आ रहा? बाय मशीनरी डिस्पोजल. डिस्पोजल में क्या आएगा? टू मशीनरी. प्रोविजन में क्या लिखा हम लोग? टू डिस्पोजल. डिस्पोजल में क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप. ओके, now the last account which is prepared as machinery disposal account. मशीनरी में क्या लिखा था हम लोग? बाय मशीनरी डिस्पोजल. डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? टू मशीनरी 1 लाख. प्रोविजन में क्या लिखा हम लोग? टू डिस्पोजल. डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? बाय provision for debt till the date of sale. This debt will be deducted from the value of the machine to get the value of the machinery on the date of sale. 57,000 मेरा debt है till the date of sale. अब 1 lakh minus 57, what is the value of the machinery? 43,000. 43,000 का मशीन को मान लो हम सेल कर रहे हैं 35,000 में बाय बैंक. 35. So 43 minus 35. Loss is how much? By PL. Loss is 8,000. अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं होता तो ये सारे एंट्री कहाँ तो मशीनरी अकाउंट में जो पहले दिखाया था स्टेट लाइन डिमिनिशिंग में. प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, so these entries will be recorded under disposal account, not in machinery account. Okay, this is full concept regarding depreciation chapter. Hope you understand. Now I'm closing my session today. Those who are not subscribed my channel, please subscribe, like and share my videos, and say goodbye to all of you. Thank you.